Hope you all are doing well. We are here to discuss about a new topic named salt. Salt, as we know, is formed when neutralization reaction occurs. Neutralization reaction, we already discussed in our videos. What is neutralization? Neutralization is the process by which an acid in aqueous solution get reacted with base in aqueous solution to produce salt and water. So the salt is formed when acid react with base both in aqueous solution to produce salt plus water. This is the reaction called neutralization of acidic and basic behavior. न्यूट्रलाइजेशन नाउ हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्ट की. सॉल्ट वो सब्सटेंस होता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है. दोनों वाटर सॉल्युबल, वाटर के अंदर होते हैं, पानी से मिला हुआ, या वाटर सॉल्युबल एसिड या एक्वस एसिड जब एक्वस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनाता है सॉल्ट और वाटर. इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर हम बात करें कि सॉल्ट पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल कहने का मतलब है कि सॉल्ट पर ना पॉजिटिव चार्ज होगा, ना वो हाइड्रोजन आयन देगा, ना ही वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा. जब एसिड की बात करें तो एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है. और अगर बेस की बात करें तो ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है. और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनका जो ये रिलीज करने की कैपेबिलिटी है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं H2O, मतलब वाटर. इसलिए जब ये रिएक्ट होते हैं आपस में तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट कहलाता है, जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रली बिहेव करता है. मतलब ना उसमें पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और ना ही नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद sodium hydroxide, they produce sodium chloride with water. This whole reaction is done in aqueous solution. And this NaCl is salt. As we know, it is called common salt or rock salt. Here HCl is acid, hydrochloric acid, and NaOH is base, sodium hydroxide. Another example we can take of sulfuric acid with potassium hydroxide. Sulfuric acid with potassium hydroxide. When sulfuric acid is react with potassium hydroxide, what happens? When sulfuric acid is added with potassium hydroxide, they produce K2SO4 plus H2O, all in aqueous. Again the same, an acid and base react to produce salt. This is the example for how the salt is prepared by adding acid and base together. Salts are basically ionic compound made up of positively charged cation and negatively charged anion. Like if we see, for the first example we have taken is HCl plus NaOH produce NaCl plus
H2O. Here we see, if we just take the salt is sodium chloride. And if we will distinguish the acid, it is a combination of H plus and Cl minus. If we take sodium hydroxide, it is Na plus and OH minus. This is the partial charge on an acid. When they combine together, they get acidic behavior. When they combine together, they get basic behavior. But when they react with each other, they produce salt, and salt also a composition of anion and cation. The positively charged ion is called cation, and the negative charge ion is called anion. Here the cation is Na plus and anion is Cl minus. The combination of two, when a salt is considered, it is a combination of positive charge cation and negative charge anion at the same time. When we are okay, this is an aqueous solution system as we discussed. हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की कि कैसे सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे. तो पहली चीज हम लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर. सोडियम क्लोराइड ऐसे हम जानते हैं कि ये कॉमन सॉल्ट है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और ये रॉक सॉल्ट भी कहलाता है. अब सॉल्ट की स्पेसिफिकेशन ये है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है जिसको हम कैटायन कहते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज आयन होता है जिसको हम एनायन कहते हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. तो सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज. फॉर दिस एग्जांपल वी टेकन NaCl इन दिस एग्जांपल, वेयर यहाँ Na प्लस जो चार्ज है ये कैटायन हो गया और Cl माइनस जो चार्ज है वो एनायन हो गया, और ये एक एक्वस सॉल्यूशन है. बट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि हम जानते हैं नमक जो होता है ये रॉक सॉल्ट से प्रोड्यूस होता है, तो इन सॉलिड स्टेट मींस NaCl in solid. The bond between NaCl, the bond between Na and Cl, the bond between Na and Cl is very high, is very strong, and they produces electric force of attraction between them. They produce electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिकली अपोजिट चार्ज एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं या सिकुड़ते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्ज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड स्टेट में ये NaCl काम करता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वस सॉल्यूशन, when we are talking about aqueous solution, NaCl, the composites of Na plus and Cl minus, जो NaCl का जो कंपोजिशन है Na plus और Cl minus, ये आपस में जब ये हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की या वाटर सॉल्युबल सिस्टम की या लिक्विड की, तो ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, और घुलने के बाद इसके जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अलग हो जाते हैं. दे स्टार्ट गिविंग electrical conductivity. When we are talking about aqueous solution, NaCl, the part of the ions of NaCl get dissolved in water and they produces Na plus and Cl minus, which is used in conduction of electricity. They gives a high conductivity of electricity when they are in aqueous solution. जब हम बात करते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ घुलने के बाद जो सोडियम क्लोराइड है
ये Na+ और Cl- में अलग अलग हो जाता है, और जब ये आयंस में बदल जाता है तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाता है, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। क्योंकि कभी भी करंट को फ्लो करने के लिए जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो चाहिए चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स मतलब आयंस, और आयंस के होने की वजह से ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये पूरा सॉल्ट का बेसिक सिस्टम है जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड दिस इज द सॉल्ट बेसिक सिस्टम व्हिच वी डिस्कस नाउ, एंड I'll be very thankful to produce you the next topic which will be related to salt. Thank you.